गुड आफ्टरनून सारे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ UPSC ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ 2026 ਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रिक्रूटमेंट टेस्ट करके लिखा होना डेट्स देखी है। जैसे अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स की न्यू डेट अनाउंस हुई है ना, कौन सी डेट को है 24 की। उसी में आप देखो, आप अभी फोकस इस पे करते हो जो आपने एग्जाम दे उसमें पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट होगी। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 4 ਜਾਂ 5 ਡੇਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸੀਡੀਐਸ ਜਾਂ NDA ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੂਡ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਟਲਰਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ 120 ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿੱਦਾਂ CSET ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ 2.5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ CSET ਵਰਗੀਆਂ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ UPSC ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਅਸਿਸਟੈਂਟ APFO ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇੱਦਾਂ ESIC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਰਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ UPSC ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਫਿਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਤੇ ਲੈਦਰ ਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ 1 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ EWS ਦੀ ਖਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲੀ 120 ਮਾਰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ, 75:25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜੁੜਨੇ ਆ, 100 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। 100 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, 300 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਬਸ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਮੈਥ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਮੇਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਐਥਿਕਸ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਕਸ ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਭ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਵੀ IAS ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, सारा कुछ सेम होता है। तो थोड़ा कोई क्वेश्चन है तो किसी इसमें देखो टैग में असिस्टेंट डायरेक्टर लग रहा है, वैसे ही पावर जैसे भी हम जिनको गेस्ट बुला रहे हैं उनको अब जाके इतनी लॉन्ग सर्विस के बाद डिकेड के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर टैग में तो आप देखो ना सोसाइटी में फिर वो डायरेक्टर टैग अपने आप में होल्ड करता है। जैसे इसमें पैटर्न में थोड़ा दिन कि जो आपने बोला ये GS के टॉपिक्स हैं, जैसे UPSC कर रहे हो उनको एज मिलेगी या ये थोड़े अलग टेक्निकल वाले क्वेश्चन डाल रहे थे उन्होंने प्री का स्क्रीनिंग नहीं, इसमें सिर्फ टेक्निकल भी होता है पर वो कॉमन होता है सभी के लिए। ऐसे नहीं कि जैसे जब आपको फूड वाला ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे उसका तो सिंपल जो सभी के लिए होगा, मतलब सभी के लिए सेम होगा। इंजीनियर्स के लिए सिर्फ ये एग्जाम हम कह सकते हैं वैसे। अगर मैं मेरे सिलेबस की बात करूँ सर, उसमें एनवायरनमेंट की कंसेप्ट भी थी और बेसिक करंट अफेयर हो गई, मैथमेटिक्स। और करंट अफेयर की टाइमलाइन 6 मंथ वाली थी या पूरी से UPSC में 1 ईयर होती है? 1 ईयर। अच्छा 1 ईयर वाला सेम वो सेम है, मतलब UPSC से कोई ज़्यादा अलग नहीं है, बस सिंपल ये है कि इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। कभी-कभी मतलब एक ही है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, मतलब कोई मेंस में कोई मेंस नहीं, सिर्फ एक ही पेपर है। उसके बाद आप सीधा इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे और वो जो इंटरव्यू पैनल होता है वो आपके ग्रेड पे डिपेंड करेगा। कभी कभी जैसे ग्रेड B की ग्रुप B की पोस्ट है तो पैनलिस्ट थोड़े कम होंगे, अगर ग्रुप A की पोस्ट है तो जैसे IAS के इंटरव्यू के वैसे सेम ही आपकी होगी, बस सिर्फ ये डिफरेंस है।
और इंटरव्यू के कुछ रियल टाइम के क्वेश्चन जो आप रिकलेक्ट कर पा रहे हो, जो बोर्ड ने पूछे आपसे कोई 3-4 इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन, सबको क्यूरियस होते हैं ना कि बोर्ड में यूपीएससी क्या पूछता है, तो आपके लिए रियल फील्ड है तो कोई ऐसा कोई क्वेश्चन? वैसे सर मेरे से तो मेरे साथ और भी थे जो बैच, हमारा भी बैच था ना 7 जनों का, तो हम उसमें से 3 सेलेक्ट हो गए थे। अच्छा 7 में से 3? अच्छा 3 सेलेक्ट हो गए। वो ज़्यादातर वो आपके जो ग्रेजुएशन के क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आपको चेयरमैन होगा, यूपीएससी का मेंबर होगा, उसको आपकी फील्ड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, तो मार्क्स तो उसी ने देने हैं आपको। तो उसने जब आपको स्टार्ट करना है तो वो कुछ भी पूछ सकता है। इंट्रो जैसे मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड से शुरू हुई थी, उसके बाद उसने मेरे को टेक्निकल उसके बारे में पूछा कि आपको पता है कि आपकी कौन सी जॉब है, कि आप इतनी कम उम्र में कौन सी जॉब के लिए आ रहे हो। इसीलिए आपकी एज कितनी है रविंद्र? मेरी सर 25 है। 25 साल में आप वेक्टर काफ़ी बड़ी। और कुछ नहीं, जहाँ 20-25 मिनट इंटरव्यू चलता है और सभी वहाँ पे एक जैसे होते हैं, जो कभी कभी मतलब आप वहाँ पे अगर वहाँ तक पहुँचे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वैसे ही वहाँ पे देख के कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इसमें बस एक ही दिक्कत होती है। जैसे सर मेरे साथ था एक लड़का, उसका क्या था, सेम जैसे जो फाइनल कट ऑफ थी उसके भी सेम मार्क्स थे और जो बच्चा सेलेक्ट हुआ उसके भी सेम मार्क्स थे। तो उसकी एज थोड़ी कम थी, जो दूसरे वाला था उसकी एज ज़्यादा थी। तो एज में प्रेफरेंस होती है ना इसमें, कि जिसकी एज ज़्यादा होती है तो उसको रख लेते हैं अगर किसी 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स हों। इसमें दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे आप अगर देखोगे तो जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, जैसे कोई आप लगा लो कि कोई कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में है, जो मेरे साथ हाउस सेक्टर है, वो पहले ही सुपरवाइजर की तरह काम कर रहे थे मिनिस्ट्रीज में, तो उस तरह से। और इसमें आपकी अपर एज लिमिट कितनी है? जैसे यूपीएससी में हम कहते हैं ना 21 to 32, इसमें जनरल की 30 और 5 ऐड 5 ईयर की मतलब आपको इमीडिएटली ना नोटिफिकेशन आप कह रहे हो कि उसमें मेंशन ही है रिक्रूटमेंट की जो डेट लिखी होगी टेस्ट की, वो लाइकली किसी का अभी भी जैसे अभी भी आई होगी 05/2025 करके रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट आई हुई है। अगर आपका कोई बैकग्राउंड उसके साथ लिंक कर रहा है, साइंटिस्ट भी जैसे पोस्ट होती है, और अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, काफ़ी पोस्टें आती हैं डिपार्टमेंटल वाइज मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग। कोई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के रिलेटेड होगी, जहाँ हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड होगी, जहाँ कोई अगर किसी ने कंप्यूटर में मास्टर्स की है तो असिस्टेंट प्रोग्रामर की होती है, जैसे सीबीआई की अभी उसका एग्ज़ाम है जून में। ऐसी पोस्टें होती हैं, वो टाइम टू टाइम आपको चेक करना पड़ेगा। और इसमें कहना ठीक होगा कि जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसको डेफिनेट एज है, या फिर ये आपके वैसा एग्जाम है कि रैंडम ही इतना फर्क नहीं पड़ेगा? आप सर ये देखो कि 180 बच्चे 180 आगे सेलेक्ट होते हैं, तो जो अगर हम देखें कि 5 लाख बच्चा बन रहा है तो फेलियर तो एक रियलिटी है इसमें, तो वो सभी इसी में आते हैं बाद में। आप पहले आ जाओ चाहे बाद में आ जाओ, तो तैयारी के साथ इसको अपने उसके साथ अपना कैरियर ऐसा देख सकते हो, तो ये आपके पास जैसे अब आपको मिल गई है तो आगे आप एग्जाम दोगे या कंटेंट दो? नहीं सर, मैं दूंगा एग्जाम। पीसीएस भी दोगे? पीसीएस अभी भरा होगा आपने? पीसीएस भी सर, हाँ, जैसे अगर एसडीएम जाता है सीधा तो अपनी डिस्ट्रिक्ट में या कि मेरे ख्याल से इसमें इशू क्या है कि पीछे वाली पोस्ट है, अब आपने कि मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रहा हूँ, इसको अब आप सिर्फ टॉप वाली 2-3 पोस्ट को टारगेट करना प्रेफर करोगे? तो सिविल सर्विसेज की वो भी अगर आईएएस या आईपीएस अगर मुझे पंजाब कैडर मिलता है तो इसमें ऑल इंडिया लेवलिटी होता है ना कि आपको कहीं पे भी क्या करते हैं ज्वाइनिंग दे सकते हैं, और सभी को आपको प्रेसिडेंशियल अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट के ऑर्डर आते हैं, सभी सेम चीज़ उसी की तरह होती है, बस सिंपल है कि वो उसकी थोड़ी ज़्यादा अब इसकी अवेयरनेस नहीं है, थोड़ा हाई पावर्स का ये मतलब सर्व तो आप नेशन को देखो बेस्ट इंटरेस्ट में करेंगे। कोई आपके इंडिविजुअल डाउट है तो मैं ये पूछता हूँ फॉर्म से तो किस टाइम में आपने नोटिफिकेशन किस टाइम भरा था फॉर्म का जो आपने अभी? मैंने पिछले साल भरा था मार्च में भरा और अक्टूबर में मेरा पेपर था, 20 दिन बाद रिजल्ट आ गया, एग्जैक्ट 20 दिन बाद रिजल्ट आ गया था। और इंटरव्यू तो बहुत शॉर्ट आया है, कब हुए थे लास्ट इंटरव्यू और उसके बीच में रिजल्ट के बीच में टाइम लगा? सर वो 12 दिन का गया, 12 दिन का। मेरी 22 को इंटरव्यू हुई और हमारा 5 को रिजल्ट आ गया, 5 मई को, 22 अप्रैल को इंटरव्यू थी और 5 मई को रिजल्ट आ गया। और जो इसमें कॉमन सर्विसेज है ना, वो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है। अगर पीसीएस की आपने पोस्ट करी है किसी ने पंजाब की, उसमें एक कंसिलेशन ऑफिसर होगा, देखा आपने?
लेबर डिपार्टमेंट का। कि यहाँ पे भी ना एक स्टूडेंट थे जशन करके उनका नाम है, उनको वही मिली थी लेबर वाला, उनका रैंक 12 आया था जनरल कैटेगरी में, उसमें बीसीएस में सीट्स इतनी कम थी 12 पे ही लेबर वाला मिला। जैसे वो आपने अभी एस्पिरेंट सीरीज देखी होगी, उसमें जो संदीप भैया है ना वो लेबर वाले ही वो जो पीसीएस के वो थोड़ा निचली पोस्ट है, अगर आप यूपीएससी भी रिक्रूट करता है, ये शायद हर साल निकलती है शायद असिस्टेंट लेबर कमीशन की, तो आप उसके सीनियर होंगे, तो ये पोस्ट है। बस उसमें थोड़ा ये होता है कि जो लॉ की हुई है जिन्होंने डिग्री, उनको थोड़ा वो प्रेफर करते हैं, ये बात है। और आपके साथ कोई डाउट कोई भी प्रिपरेशन के लिए पी यूपीएससी की भी कर रहे हैं, वैसे आपको कोई लीगल यूपीएससी की प्रिपरेशन या पीसीएस की भी पूछ कोई आपके बैकग्राउंड के रिलेटेड भी मैंने ये किया है, तो मैंने मैं मैकेनिकल किसमें मैकेनिकल 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 की भी काफ़ी पोस्टें आती हैं। मेरे को मैकेनिकल की नॉलेज नहीं है, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, बट मतलब मैं टेक्निकल उसमें जैसे वो मैटर करे से आपका फूड था, फूड के पर आपके क्वेश्चन आए ही नहीं, मुझे भी फूड की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। 3 साल हो गए क्योंकि डिस्कनेक्ट थे, और कोरोना के फेस में डिग्री हो गई, तो कुछ भी मतलब आप जब इंटरव्यू के फेस में जाओगे तो आप वो चीज़ें कवर कर लोगे। और मेरा फाइनल क्वेश्चन, न्यूज़पेपर कौन सा कर रहे थे, मूवी एवरग्रीन कोई नहीं रियल So we can have final round of applause for Ravinder for his